So question number 10 of probability. So ये basically Bayes theorem का question है, Bayes theorem. So we will see some question on the basis of that. So coming to the first question. So what is given here? So a student from three colleges X, Y, and Z have participated in a competition where 30% of the participants are from college X. So it is saying that 30% are from X and 20% from Y and 50% from college Z. So this is given that the student have participated from individual college. It is known that 50% and 40% and 60% of the participant from the college XYZ are respectively are girls. Okay. So it is given that the 40% and 50% and 60% are the girls from X, Y, and Z colleges. If a girl is randomly selected, then what is the probability that she is from college X? So what we need to find? So we need to find if we will select a girl randomly. So what will with the probability of that girl is coming from college X? So let us understand some thing here. So what we have given here, we have given. So first we will write what the information is given in the question. So हम लोग पहले वो लिखते हैं. तो हम लोग को गिवन क्या है? So given है probability of x is equal to how much? 0.3. Okay. And probability of student coming from college y, we have 20% means 0.2. Do you know how I am converting this into 0.3? Because 30% is there now. So 30% means percentage means value 100. So it will come down after calculating 0.3. It will come like that for 20% and like that for 50%. And the probability of z how much? 0.5. Okay. So this will be the answer here. Okay. So let us see. And again what is given? So uh, it is known that 50% and etna are the participate from the college XY and they are the girls. So we will see here the probability of girl, okay, who is from college which X. What is given? The probability of girl who is the probability of that girl from the college X is given 0.5, and similarly probability of G coming from Y is equal to 0.4, and probability of G coming from Z college is 0.6. Okay, so this is the given information we have. Okay, so what we need to find? We need to find the what is the probability of that girl who will come from the college X. Okay, so we need to find actually this one. What is the probability of that girl is coming from the college X? So let us see. So what we need to do here? So okay, so what we need to do here? So what we have given? So let me show first. हाँ okay. So यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को एक्चुअली निकालना है ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट गर्ल निकालना है कि वो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो एक्स कॉलेज से आई है. बेसिकली हम लोग को यह निकालना है. तो बायेसियन थ्योरम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हमको ए बाई बी अगर निकालना है तो हम क्या लिखते हैं? पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं ए का और इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मीन्स लाइक दैट. मीन्स क्या होगा प्रोबेबिलिटी बी का कि ए से ए कॉलेज से है, इसका कहने का यही ना सेम चीज़. क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल का कि वो एक्स कॉलेज से है, तो उसके लिए क्या निकलेगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलेज टोटल स्टूडेंट इन कॉलेज एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वो गर्ल का कितना है कॉलेज में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल इन कॉलेज एक्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल इन ऑल कॉलेजेस. ओके, सो यहाँ पर क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी कॉलेज का कितना है,
कितना स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया था, उसको मल्टीप्लाई किए उस गर्ल में, उस कॉलेज में गर्ल का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, और उसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल से। तो ये क्या हमको निकलेगा, प्रोबेबिलिटी निकलेगा वो गर्ल है कि नहीं, या फिर वो गर्ल रहेगी कि नहीं फर्स्ट कॉलेज से। अगर फर्स्ट कॉलेज में निकालना है कि वो गर्ल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, अगर मान के चलिए कि इसको हम ऐसे समझाएं इस चीज़ को, तो देखिए मान के चलिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, ओके 100 है, ठीक। और हमको निकालना है, हम हमारे पास दिया हुआ है कि 30% क्या है, 30% क्या है, गर्ल है उस कॉलेज में 30%। तो निकालना है कि गर्ल का संख्या कितना है, तो ये सेम चीज़ ना दिया हो जाए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल लेंगे, क्या करेंगे, टोटल लेंगे कि कितना है स्टूडेंट कॉलेज में, और उसको क्या करेंगे 30/100 करेंगे, तो क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ निकल गया ना कि 30 गर्ल है उस कॉलेज में। तो सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, इस केस में क्या ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस गर्ल गर्ल का प्रोबेबिलिटी कितना है उस कॉलेज में, ठीक है, और टोटल डिवाइड कर दे रहे हैं टोटल नंबर ऑफ गर्ल से, तो क्या निकलेगा, तब ना ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकलेगा उस गर्ल का। तो सेम चीज़ ये कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ को थोड़ा क्लियर कर लीजिए, तो ये कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आगे इस फार्मूला को लिखते हैं अच्छा से, थोड़ा कि आपको समझ में आए अच्छा तरीका से। तो वी विल राइट दिस वन, लेट मी रेज फर्स्ट। सो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, हमको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, वो गर्ल आएगी फ्रॉम कॉलेज एक्स, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट गर्ल इन कॉलेज एक्स डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल गर्ल, ओके। ठीक है, ये चीज़, ये क्या है, टोटल गर्ल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दिया हुआ है कितना है, 0.3 दिया हुआ है, क्रॉस करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल का एक्स कॉलेज में कितना है, एक्स कॉलेज से आई है तो यहाँ 0.5 मेंशन है, तो 0.5 करेंगे। ये जो हमारा नोमिनेटर जो पार्ट है इसका तो क्रिया खत्म हो गया, ये तो हमको 0.3 इंटू 0.5 है, ठीक। अब हमको मेन चीज़ निकालना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल का, ठीक है, हर एक कॉलेज में। तो अब हम निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वो गर्ल इन कॉलेज वाई, तो क्या निकालेंगे, वाई यहाँ लिखेंगे, और बट ये क्या करेंगे यहाँ पर जी निकाल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, कि प्रोबेबिलिटी उस गर्ल का वाई कॉलेज से आने का, तो इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई स्टार प्रोबेबिलिटी ऑफ उस गर्ल का वाई कॉलेज में। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड गिवन जी, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड स्टार प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन जेड। उसी तरह से एक्स का होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन जी, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन एक्स, ये होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगा, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं कि ये किसके बराबर होगा, ये वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए ऊपर दिया गया है 0.2 दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.2 है, 0.2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन वाई, जी गिवन वाई कितना है यहाँ देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन 0.4 है, 0.4, ठीक है। अब उसी तरह से जेड वाला में देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड कितना दिया हुआ है हमको, 0.5 दिया हुआ है देख सकते हैं, इंटू करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा जी गिवन जेड कितना है, जी गिवन जेड देखिए कितना है 0.6 है, लिख दिए, ये तो इसका हुआ। अब एक्स वाला में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना है 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है जी गिवन एक्स, जी गिवन एक्स है 0.6, ठीक है। तो ये तो हम लिख लिए हैं भैया, ठीक है, जी गिवन एक्स, ओके, जी गिवन एक्स सॉरी 0.6 नहीं है 0.5 है जी, 0.5 है, ओके 0.5 है, ठीक। तो ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, ठीक है। ये क्या होगा, आपस में प्लस करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ हमारा क्या है, इसको थोड़ा इरेज करते हैं थोड़ा सा, हाँ। अब देखिए लिखते हैं यहाँ पर ऊपर डिनोमिनेटर में क्या था 0.3 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई, ठीक है, जोड़ेंगे सबको 0.2 इंटू 0.4, ये हो गया एक, प्लस 0.5 इंटू 0 पॉइंट कितना 6, ठीक, प्लस करेंगे फिर
0.3 गुने 0, सॉरी इसको इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर नहीं लिखा पाएगा, इसको इधर लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 0.5, यही होगा ना। हाँ चलिए इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 1.8 नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में जोड़िए, ये डिनोमिनेटर में जोड़िए, सब जोड़ के कितना आएगा, ये आ जाएगा 0 पॉइंट आपका 0.6, हाँ सॉरी सॉरी 0.8 मल्टीप्लिकेशन है, 0.8 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 1.5, जोड़िए 1.8 डिवाइडेड बाई 1.8 डिवाइडेड बाई, जोड़िए 3 एंड 4, 4 एंड 5, 5.3, यही होगा ना जी। यही होना चाहिए, 8 5 13, ओके, 3 और 1 4, 4 और 1 5, हाँ इतना ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1.8 5.3, ये इसका टोटल आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं देख सकते हैं, अगर थोड़ा मिस्टेक उस्टेक है तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या था, हाँ सेम आंसर है, ओके। जो यही, अरे सॉरी सॉरी 15 है 0.5, इसको देखते हैं क्या है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है जी, यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल का एक्स में कितना है 0.5 है ना, तो ये यहाँ पर आपको 5 हो जाएगा, बचती है 15 होता है, तो इतना हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 0.5, ओके, फाइनल आंसर हो जाएगा 0.5, यानी कि 1.5 डिवाइडेड बाई 5.3, यह कैलकुलेट करिएगा, जितना आंसर होगा वही करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।